السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، صراط المستقیم چینل پہ پھر سے ایک بار خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، آڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو نئے آڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی داستان شجاعت، عنایت اللہ التمش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہنشاہ فارس ارد شہر آگ بگولا ہوا جا رہا تھا۔ اسے ہرمز پر غصہ آ رہا تھا جس نے کمک مانگی تھی۔ کمک بھیجنے کے بعد اسے ابھی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی کہ میدان جنگ کی صورتحال کیا ہے۔ وہ دربار میں بیٹھتا تو مجسم عتاب بنا ہوتا، محل میں وہ کہیں بھی ہوتا تو اس کیفیت میں ہوتا کہ بیٹھے بیٹھے اٹھ کھڑا ہوتا، تیز تیز ٹہلنے لگتا اور بلا وجہ کسی نہ کسی پر غصہ جھاڑنے لگتا۔ اس روز وہ باغ میں ٹہل رہا تھا جب اسے اطلاع ملی کہ کارن کا قاصد آیا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ قاصد کو بلاتا، وہ قاصد کی طرف بڑی تیزی سے چل پڑا۔ کیا کارن نے ان صحرائی گیدڑوں کو کچل ڈالا ہے؟ ارد شہر نے پوچھا۔ شہنشاہ فارس قاصد نے کہا، جان بخشی ہو، شہنشاہ کا غلام اچھی خبر نہیں لایا۔ کیا کارن نے بھی کمک مانگی ہے؟ ارد شہر نے پوچھا۔ نہیں شہنشاہ فارس، قاصد نے کہا، سالار ہرمز مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ مارا گیا ہے؟ ارد شہر نے حیرت سے کہا، کیا ہرمز کو بھی مارا جا سکتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اس نے گرج کر قاصد سے پوچھا، تمہیں یہ پیغام کس نے دیا ہے؟ سالار کارن بن قریانس نے۔ قاصد نے کہا، ہمارے دو سالار قباز اور انوش جان پسپا ہو کر آ رہے تھے۔ باقی سپاہ بھی جو زندہ تھی ایک ایک دو دو کر کے ان کے پیچھے آ رہی تھی۔ دریائے معطل کے کنارے وہ آتے ہوئے ملے۔ انہوں نے بتایا کہ سالار ہرمز نے مسلمانوں کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا تو ان کا سالار خالد بن ولید ہمارے سالار کے مقابلے میں آیا۔ سالار ہرمز نے اپنے محافظوں کو ایک طرف چھپا دیا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے سالار کو گھیرے میں لے کر قتل کرنا تھا۔ انہوں نے اسے گھیرے میں لے بھی لیا تھا، لیکن کسی طرف سے ایک مسلمان سوار سرپٹ گھوڑا دوڑاتا آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں برچی اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے سالار ہرمز کے 6-7 محافظوں کو ختم کر دیا۔ عین اس وقت مسلمانوں کے سالار نے سالار ہرمز کو گرا لیا اور خنجر سے انہیں ختم کر دیا۔ ارد شہر کا سر جھک گیا اور وہ آہستہ آہستہ محل کی طرف چل پڑا۔ جب وہ محل میں پہنچا تو اس نے یوں دیوار کا سہارا لے لیا جیسے اسے ٹھوکر لگی ہو، اور گرنے سے بچنے کے لیے اس نے دیوار کا سہارا لے لیا ہو۔ وہ اپنے کمرے تک دیوار کے سہارے پہنچا۔ کچھ دیر بعد محل میں ہڑبونگ سی مچ گئی۔ طبیب دوڑے آئے۔ ارد شہر پر کسی مرض کا اچانک حملہ ہو گیا تھا۔ یہ صدمے کا اثر تھا۔ فارس کی شہنشاہی شکست سے نا آشنا رہی تھی۔ اسے پہلی ضرب رومیوں کے ہاتھوں پڑی تھی اور فارس کی شہنشاہی کچھ حصے سے محروم ہو گئی تھی۔ اب اس شہنشاہی کو
उस कौम के हाथों चोट पड़ी थी जिसे उर्द शहर कौम समझता ही नहीं था। उर्द शहर के लिए यह सदमा मामूली नहीं था। कारन बिन कुरियान अभी दरिया मुअत्तल के किनारे पर खेमा जन था। उसने वहां इतने दिन इसलिए कियाम किया था कि हरमस की फौज के भागे हुए कमांडर और सिपाही अभी तक चले आ रहे थे। कारण इन्हें अपने लश्कर में शामिल करता जा रहा था। हरमस के दोनों सालार कबाज और अनुशजान उसके साथ ही थे। वो अपनी शिकस्त का इंतकाम लेने का अहद किए हुए थे। उनके कहने पर कारण पेश कदमी में मोहतात हो गया था। कयाम के दौरान उसके जासूस उसे इत्तिलाएं देते रहे थे कि मुसलमानों की सरगर्मी और अजाइम क्या है। इन इत्तिलाओं से उसे यकीन हो गया था कि मुसलमान वापस नहीं जाएंगे बल्कि आगे आ रहे हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जंगे सलासल जीतने के बाद काज़मा और छोटी छोटी आबादियों के इंतजामी उमूर अपने हाथ में ले लिए थे। जब वो इन आबादियों में गया तो वहां के मुसलमानों ने चिल्ला चिल्ला कर खालिद जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, खिलाफते मदीना जिंदाबाद के नारे लगाए। वो सरसब्ज और शादाब इलाका था। औरतों ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके मुहाफिजों के रास्ते में फूल फेंके। इस इलाके में मुसलमानों को बड़ी लंबी मुद्दत के बाद ईरानी जोर व इस्तबदलात से निजात मिली थी। खालिद, क्या तू हमारी असमतों का इंतकाम लेगा? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को कई औरतों की आवाजें सुनाई दी। हमारे जवान बेटों को खून का इंतकाम, इंतकाम, खालिद, इंतकाम। ये एक शोर था, ललकार थी, और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु इस शोर से गुजरते जा रहे थे। हम वापस जाने के लिए नहीं आए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने वहां के मुसलमानों से कहा, हम इंतकाम लेने आए हैं। मुसलमानों के एक वफद ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया कि इस इलाके के गैर मुस्लिमों पर वो भरोसा न करे। ये सब फारसियों के मददगार है। वफद ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया, मजूसियों ने हमेशा हमारे खिलाफ मुखबिरी की है। हमारे बेटे जब फारसियों की किसी चौकी पर शबखून मारते थे तो मजूसी मुखबिरी करके हमारे बेटों को गिरफ्तार करा देते थे। तमाम ईसाइयों और यहूदियों को गिरफ्तार कर लो। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया, और मुसलमानों में से जो इस्लामी लश्कर में आना चाहते हैं आ जाए। वो पहले ही मुसन्ना बिन हारिसा के साथ चले गए हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को जवाब मिला। फौरन ही मजूसियों और दिगर गैर मुस्लिमों को पकड़ धकड़ शुरू हो गई। इनमें से सिर्फ उन्हें जंगी कैदी बनाया गया जिनके मुतालिक मुसद्दी का शहादत मिल गई कि उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जंगी कार्रवाइयां की थी या मुखबिरी की थी। नज़्म व नस्क के लिए अपने कुछ आदमी काज़मा में छोड़कर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़ गए। अब उनकी पेशकदमी की रफ्तार तेज नहीं थी, क्योंकि किसी भी मुकाम पर ईरानियों से लड़ाई का इम्कान था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने जासूस, जो उस इलाके के मुसलमान थे, आगे और दाएं बाएं भेज दिए थे। मुसन्ना बिन हारिसा आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। वो दरियाए मुअत्तल उबूर करना चाहता था, लेकिन दूर से उसे ईरानियों की खेमागाह नजर आई। वो बहुत बड़ा लश्कर था। मुसन्ना के पास 1,500 से कुछ ज्यादा सवार थे। इतनी थोड़ी तादाद से
मुसन्ना ईरानी लश्कर से टक्कर नहीं ले सकता था। हमें यहीं से पीछे हट आना चाहिए, मुसन्ना के एक साथी ने कहा। ये लश्कर हमें घेरे में लेकर खत्म कर सकता है। समझने की कोशिश करो, मुसन्ना ने कहा। अगर हम पीछे हटे तो फारसियों के हौसले बढ़ जाएंगे। हमारे सिपा सालार खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था कि पेशतर इसके कि पारसियों के दिल हमारी दहशत खत्म हो जाए, हम उन पर हमले करते रहेंगे। हमें अपनी दहशत बरकरार रखनी है। मैं आग के इन पुजारियों की फौज को ये तासुर दूंगा कि हम अपने लश्कर का हराविल दस्ता है। हम लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। अगर लड़ना पड़ा तो हम इनसे वही जंग लड़ेंगे जो एक मुद्दत से लड़ रहे हैं। जर्ब लगाओ और भागो। क्या तुम ऐसी जंग नहीं लड़ सकते? मुसन्ना ने एक सवार को बुलाया और उसे कहा, घोड़े को ऐड लगाओ। सिपह सालार खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु काज़मा या उबला में होंगे। इन्हें बताओ कि मुअत्तल के किनारे फारस का एक लश्कर पड़ाव डाले हुए है। उन्हें कहना कि मैं लश्कर को आगे नहीं बढ़ने दूंगा और आपका जल्दी पहुंचना जरूरी है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु पहले ही काज़मा से चल पड़े थे। इन्हें घोड़ों और बाबरदार ऊंटों के लिए चारे और लश्कर के लिए खाने के सामान की कमी नहीं थी। उस इलाके के मुसलमानों ने हर चीज का बंदोबस्त कर दिया था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का रास्ता कोई और था। वो उबला से कुछ दूर खंडरों के करीब से गुजर रहे थे। सामने घुड़सवार बड़ी तेज रफ्तार से आ रहा था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दो मुहाफिजों से कहा कि वो आगे जाकर देखे ये कौन है। मुहाफिजों ने घोड़ों को एड़ लगाई और आने वाले सवार को रास्ते में जा लिया। उस सवार ने घोड़ा रोका नहीं। दोनों मुहाफिजों ने अपने घोड़े उसके पहलुओं पर लाकर और उसके साथ कर लिए। मुसन्ना बिन हारिसा का पैगाम लाया हूं, दूसरे से एक मुहाफिज ने कहा। फारस का एक ताजा दम लश्कर दरियाए मुअत्तल के किनारे पड़ाव किए हुए है। मुसन्ना के कासिद ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के करीब आकर रुकते हुए कहा, तादाद का अंदाजा नहीं। आपके और मुसन्ना के लश्कर की तादाद से उस लश्कर की तादाद 7-8 गुना ज्यादा है। फारस के भागे हुए सिपाही भी उस लश्कर में शामिल हो गए हैं। मुसन्ना कहाँ है? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा। फारसियों के सामने, कासिद ने कहा। मुसन्ना ने हुक्म दिया है कि कोई अस्करी पीछे नहीं हटेगा और हम फारसियों को ये तासुर देंगे कि हम अपने लश्कर का हराविल है। मुसन्ना ने पैगाम दिया है कि जल्दी पहुंचे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी फौज की रफ्तार तेज कर दी और रुख उधर कर लिया जिधर मिसन्ना बिन हारिसा था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की फौज मुसन्ना के सवारों से जा मिली। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले दुश्मन का जायजा लिया। वह मुसन्ना के साथ एक ऊंची जगह खड़े थे। दुश्मन जंग की तैयारी मुकम्मल कर चुका था। फारसी हमें आमने सामने की लड़ाई लड़ाना चाहते हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसन्ना से कहा, देख रहे हो इब्ने हारिसा, उन्होंने दरिया को अपने पीछे रखा है। ये फारसी सिर्फ आमने सामने की लड़ाई लड़ सकते हैं। मुसन्ना ने कहा, मुझे इनके एक कैदी से पता चला है कि इनके दो सालार जिनके खिलाफ हम लड़े हैं जिंदा पीछे आ गए हैं। एक का नाम कबाज और दूसरे का
अनुश जान। उन्होंने अपने सिपह सालार को बताया होगा कि हमारे लड़ने का अंदाज कैसे है। इसीलिए उन्होंने अपने अक़ब को हमसे इस तरह महफूज कर लिया है कि अपने पीछे दरिया को रखा है। ज्यादा न सोच वलीद के बेटे, मैं इनके खिलाफ जमीन के नीचे से लड़ता रहा हूं। अल्लाह तुझे अपनी रहमत में रखे इब्ने हारिसा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मुझे उम्मीद है हम इनके सफ़े इस तरह दरहम बरहम कर देंगे कि हमें इनके पहलुओं से आगे निकलने और पीछे से इन पर आने का मौका मिल जाएगा। मेरे सवार टिक कर लड़ने वाले नहीं, ये घूम फिर कर लड़ने वाले हैं। इन्हें आगे धकेलने की जरूरत नहीं। मुश्किल ये पेश आएगी कि इन्हें पीछे किस तरह लाया जाए। फारसियों को देखकर तो ये शोले बन जाते हैं। उन्होंने फारसियों के हाथों बहुत जख्म खाए हैं इब्ने वलीद। तुम जानते हो उन्होंने किस किस्म की गुलामी देखी है। फारस के इन आतिश परस्तों ने इस इलाके के मुसलमानों को इंसानों की तरह जिंदा रहने के हक से महरूम कर रखा था। हम जरतुश्त की उस आग को सर्द कर देंगे इब्ने हारिसा, जिसकी ये इबादत करते हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ये खुद मानेंगे कि इबादत के लायक एक अल्लाह है, जिसकी राह में हम अपनी जानें कुर्बान करने आए हैं। आओ, मैं ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहता। ये जिस तरह रुके हुए हैं, इससे पता चलता है कि मोहतात है और इन पर हमारी धात बैठी हुई है। तुम अपने सवारों के साथ कल्ब में रहो। मोरिको ने लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत सोचा कि किसी तरह इन्हें चाले चलने का मौका मिल जाए, लेकिन ईरानियों का सालार कारन बिन कुरियान्स दानिशमंद आदमी था। उसे पता चल गया था कि खालिद किस तरह लड़ता है। कारन ने अपने शिकस्त खुर्दा सालारों कबाज और अनुशजान को पहलुओं पर रखा और अपने लश्कर को आगे ले आया। इस लश्कर की अपनी ही शान थी। पता चलता था किसी शहंशाह की फौज है। इनके कदमों के नीचे जमीन हिलती थी। इधर यसरब के सरफरोश थे। ज़ाहरी तौर पर इनकी कोई शान नहीं थी। ईरानियों के मुकाबले में मुसलमानों के हथियार भी कमतर थे। लिबास भी यूं ही से थे और इनकी तादाद ईरानियों के मुकाबले में बहुत थोड़ी थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी फौज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया तो हजारों कदमों की धमक सुनी और घोड़ों के टापों के साथ कलमा ये तय्यबा का विर्द कोई और ही तासुर कर रहा था। ये फौज थकी हुई थी, जरतुश्त ताजा दम थे। दोनों फौजों के दरमियान थोड़ा सा फासला रह गया तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी फौज को रोक लिया। मुसन्ना बिन हारिसा अपने सवार दस्ते के साथ खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे था। दाएं और बाएं पहलुओं पर खालिद के मुकर्रर किए हुए दो सालार आसिम बिन अम्र और ऐदी बिन हातिम थे। उस दौर की जंगों के दस्तूर के मुताबिक जरतुश्त का सिपह सालार कारन आगे आया और उसने मुसलमानों को इनफरादी मुकाबले के लिए ललकारा। मदीना का कोई शतुरबान मेरे मुकाबले में आ सकता है। उसने दोनों फौजों के दरमियान आकर और ललकार कर कहा, मेरे मुकाबले में आने वाला ये सोचकर आए कि मैं शहंशाह फारस का सिपह सालार हूं। मैं हूं तेरे मुकाबले में आने वाला। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और ललकारे, कारण आ
اور اپنے سالار ہرمز کے قتل کا انتقام لے۔ میں ہوں اس کا قاتل۔ خالد رضی اللہ عنہ ابھی کارن سے کچھ دور ہی تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ کے عقب سے ایک گھوڑا تیزی سے آیا اور خالد رضی اللہ عنہ کے قریب سے گزر گیا۔ پیچھے رہے ابن ولید، یہ گھڑ سوار للکارا، آتش پرستوں کا یہ سالار میرا شکار ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ مسلمان سوار موقل بن عاشی تھا۔ وہ پہلوانی اور تیز زنی میں مہارت اور شہرت رکھتا تھا۔ یہ ڈسپلین کے خلاف تھا کہ کوئی سپاہی یا سوار اپنے سالار پر برتری حاصل کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ وقت ایسا تھا کہ بندہ و صاحب اور محتاج و غنی ایک ہو گئے تھے۔ سپاہی اور سوار جنگ کا مقصد سمجھتے تھے۔ جو جذبہ سپاہیوں کا تھا وہی سالاروں میں تھا۔ موقل بن عاشی یہ برداشت نہ کر سکا کہ اس کا سالار ایک آتش پرست کے ہاتھوں گھائل ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنی سپاہ کے جذبے کو سمجھتے تھے۔ وہ رک گئے۔ انہوں نے اپنے اس سوار کے جذبے کو مارنے کی کوشش نہ کی۔ موقل کے گھوڑے کی رفتار تیز تھی۔ گھوڑا ایرانیوں کے سالار کارن بن کریانس کے آگے نکل گیا۔ موقل نے آگے جا کر گھوڑے کو موڑا اور کارن کو للکارا۔ کارن نے پہلے ہی تلوار اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ اس کے سر پر جنجیروں والا خود تھا اور اس کا اوپر کا دھڑ جرا میں تھا۔ اس کی ٹانگیں موٹے چمڑے کے کھول چڑھے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر انتقام کے تاثرات کی بجائے تکبر تھا، جیسے لوہے اور موٹے چمڑے کا یہ لباس اسے مسلمان کی تلوار سے بچا لے گا۔ کارن نے اپنے گھوڑے کی باگ کو جھٹکا دیا۔ دونوں کے گھوڑے ایک دوسرے کے ارد گرد ایک دو چکر لگا کر آمنے سامنے آئے۔ اے آگ کے پوجنے والے، موقل نے بڑی بلند آواز سے کہا، میں سپاہی ہوں، سالار نہیں ہوں۔ کارن بن کریانس کے چہرے پر رعونت کے آثار اور زیادہ نمایاں ہو گئے۔ دونوں گھوڑے ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ ان کے سواروں کی تلواریں بلند ہوئی۔ پہلے وار میں تلواریں ایک دوسرے سے ٹکرائی اور دونوں سوار پیچھے ہٹ گئے۔ گھوڑے ایک بار پھر ایک دوسرے کی طرف آئے۔ تلواریں ایک بار پھر ہوا میں ٹکرائی۔ اس کے بعد گھوڑے پیچھے ہٹ ہٹ اور گھوم گھوم کر ایک دوسرے کی طرف آئے۔ دونوں سوار ایک دوسرے پر وار کرتے رہے۔ آخری بار کارن نے تلوار بلند کی۔ موقل نے وہ وار روکنے کی بجائے اس کی بغل کو ننگا دیکھا تو تلوار برچھی کی طرح اس کی بغل میں اتنی زور سے ماری کہ تلوار کارن کے جسم میں دور تک اتر گئی۔ کارن کے اسے ہاتھ میں تلوار تھی جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ کارن گھوڑے پر ایک طرف جھکا۔ موقل نے اب اس کی گردن دیکھ لی، جس سے کارن کے آہنے خود کی جنجیریں ہٹ کر نیچے کو لٹک آئی تھی۔ موقل نے پوری طاقت سے گردن پر ایسا وار کیا کہ تکبر اور رعونت سے اکڑی ہوئی گردن صاف کٹ گئی۔ مسلمانوں کے لشکر سے داد و تحسین اور اللہ اکبر کے نعرے روعت کی طرح کڑکنے لگے۔ کارن بن کریانس کا سر زمین پر پڑا تھا۔ اس کے زنجیروں والے خود کے نیچے اس کی حیثیت کے مطابق 1,00,000 درہم کے ہیروں والی ٹوپی تھی۔ ایسی ہی ٹوپی ہرمز کے سر پر بھی تھی۔ کارن کا باقی دھڑ گھوڑے سے لڑک گیا، لیکن اس کا ایک پاؤں
रकाब में फंस गया। मोकल ने कारण के घोड़े को थुड़ मारा। घोड़ा कारण के जिस्म को घसीटता दोनों फौजों के दरमियान बेलगाम दौड़ने लगा। ईरानियों के लश्कर पर मौत का सन्नाटा तारी था। आज के लिए इतना ही काफी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ऑडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।